हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी शॉक के बारे में। तो आज हमारे साथ और 3 लोग हैं जिन्होंने जी शॉक 2020 कंप्लीट किया है। ये हमें जी शॉक के बारे में काफ़ी कुछ इंसाइट्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें। अमन भाई, अपने बारे में थोड़ा बता सकते Hello everyone. Myself Aman Mishra, studying computer engineering from SUNIT Surat. I'm in my final year, and I did GSOC under the organization OpenMRS. हैं? ओके, थैंक यू अमन भाई। उज्जवल भाई। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। ओके, हाँ। सो myself Ujjwal Kumar, and I am from computer engineering branch from NIT Surat, and I did my GSOC from in Gnome Foundation this year in 2020. ओके, ऋषभ भाई। Okay, so I'm Rishabh, currently in final year in computer engineering at NIT Surat, and I completed my GSOC with BRL CAD organization. Specifically, it's an umbrella organization, so I was working on a project named OpenSCAD. Thank you. Now I think we'll start sharing the screen. Okay, I'll start the presentation. Visible है ना? हाँ, visible. Yeah. Okay. So first thing, अगर कोई एक्चुअली बिगिनर भी देख रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क वाज लाइक व्हाट इज जी शॉक? Okay. So like Google Summer of Code, everywhere, and we call it GSOC. Basically, it's a program for university students Okay. so that they can begin their open source journey. So what is actually happening in GSOC is that university students directly work on open source projects, and the whole program is managed by Google. So Okay. like you are not directly hired by Google, but you are working on open source project, and the whole program will be administered by Google itself. ओके, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ब्रांच स्पेसिफिक या साइंस बैकग्राउंड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं? नो, टोटली लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस ब्रांच से हो, किस कॉलेज से हो, लाइक दे डोंट टोटली डोंट केयर अबाउट दैट। तो Okay. तुम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पहले से अप्लाई करने से पहले, क्या तुम्हारा वर्क है, और Okay. क्या तुम जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने वर्क को जो तुम समर में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होके करने वाले हो, देन इट्स इजी टू गेट जीसो। ओके, And तो- basic criteria, या उज्जवल भाई। हाँ, बेसिक क्राइटेरिया इसमें है कि आपको एक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होना होगा, either as an undergrad or post grad or PhD students or कोई या कोई भी। Okay. Yeah, I was going to put on the same point. Okay. So first we'll move little bit with the slides presentation. So we already introduced ourselves. Okay. I had my project in Gnome. Aman Mishra was in OpenMRS, and Okay. Rishabh contributed to BRL CAD. Okay. Rishabh, Okay, so you this want to will take be this? yeah. So this will be the flow we are going to discuss. Like many of the viewer will be beginner, and they must be not knowing what is open source. So we Yes. will discuss what is open source. Then, Okay. like we have already discussed what is GSOC, so we will quickly move on that. Okay. And after that, what is the timeline if you are applying for Google Summer of Code, let's say for 2021? Okay. Yes. And after that, we will discuss some perks like what and why you should participate, what will you get. Okay. And after that, we can discuss some tips and what worked for us and other stats, etc. Okay, so you can move on, Ujjwal. Okay, so the first question is what is open source? So like किस लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर फ्री सॉफ्टवेयर और यू कैन कंट्रीब्यूट टू देम और मेंटेन देम। ओके, और वो जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक दे आर रिलीज्ड अंडर सम लाइसेंसेस। तो ऐसा नहीं तुम उसे यूज कर रहे हो तो उसके ओरिजिनल राइट्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देयर विल बी ओरिजिनल राइट्स, सो ऑल दीज राइट्स आर गवर्न्ड बाय सम लाइसेंसेस। लाइक तुमने गिटहब में भी देखा होगा
काफी सारे लाइसेंसेस आते हैं, MIT, GNU etc. Yes. So like these open source softwares are guarded by them, or if you want to contribute to them, so you can do that. Okay, Ujjwal, so do you want to add some? ओपन सोर्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनका एक्चुअल कोड बेस जो होता है वो ओपन टू पब्लिक होता है, सो कोई भी सोर्स देख सकता है, राइट? Okay. Yeah, like तो let's say like Linux. प्रोडक्शन रेडी सोर्स कोड्स हैं जिन पर ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड कर रहे हैं, जैसे Django को ही ले लो, वो भी ओपन सोर्स है। Okay. उसके कोड बेस पे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह डिपेंडेंट हैं। Okay. और Yeah. जो ऐसा भी होता है कि जो हमारे कोर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको बेसिस बनाकर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। Okay. पर हाँ, ये एक्नॉलेज किया जाता है कि हाँ, इसका मेन कोड बेस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके ऊपर हमने चेंजेस करे और हम अब ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। Okay. इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इसको बनाया गया है। हाँ, Yeah. करेक्ट। Okay. Like these are some memes I put. Okay, so just ignore them. Like we're moving to. Okay. Like we have already discussed what is GSOC, so Yes. you can move. Okay. Yeah. Annual program in which Google pays university students for working as a student developers. Okay, so just So like quickly move on. Google is in between the Yeah, okay. organizations and students. Yeah. तो Okay. गूगल का रोल मैं एक बार बताता हूँ GSOC में। सो Yes. तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट में आते हो, Okay. तुम्हारा कोड जो तुम कोड लिखते हो, जो तुम्हें मेंटेन करना होता है, और जो भी तुम्हारे कोड की क्वालिटी होती है, क्वालिटी चेक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कोर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं Okay. वही लोग करते हैं। गूगल सिर्फ हर एक मंथ के बाद एक इवैल्यूएशन लेने आता है। Okay. उसमें रिव्यूज कलेक्ट किए जाते हैं, स्टूडेंट के रिव्यूज और अपने तुम्हारे मेंटर के रिव्यूज। उसके बाद हर मंथ का वो इसके बेसिस पे स्टाइपेंड डिस्पैच करता है। Okay. और अगर हम काम ढंग से नहीं करेंगे तो बीच में प्रोग्राम से टर्मिनेट भी कर सकता है। Okay. वो सब मेंटर के रिव्यूज पे डिपेंड करता है, आप जो तुम्हें लीड कर रहा है। Okay. तो ये स्टाइपेंड पहले से फिक्स नहीं होता? हाँ, स्टाइपेंड फिक्स होता है नेट, नहीं, पर वो आपने मंथली बताया- बेसिस पे देते हैं। आपने बताया ना हाँ। रिव्यूज के बेसिस पे स्टाइपेंड। हाँ, जैसे No, like, 3 मंथ का प्रोग्राम होता है, तो Okay. पहले मंथ में अ पार्ट ऑफ स्टाइपेंड गेट्स डिस्पैच्ड, फिर नेक्स्ट मंथ में एक पार्ट आएगा, फिर लास्ट मंथ में बचा हुआ सारा। Okay. और लाइक तुमने ये GSOC प्रोग्राम कंप्लीट करा है, वो जब भी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा जब तुम सारे इवैल्यूएशन पास करते हो एंड तक। लाइक Okay. देयर विल बी 3 evaluations, first evaluation, second evaluation and one final evaluation. Okay. So like you have to pass all 3. तो ऐसा भी हो Okay. सकता है तुमने फर्स्ट कर लिया लेकिन सेकंड नहीं कर पा रहे, तो लाइक वो फिर तुम ऐसे कंप्लीट नहीं करा GSOC। Okay. तो ऐसा क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट मंथ का स्टाइपेंड तो मिल जाएगा, हाँ. मतलब वो मंथ स्टाइपेंड मंथली बेसिस पे मिलता है, पर नेट कंप्लीशन वो 3 मंथ के बाद ही होता है। Okay. तो नेक्स्ट पढ़े। हाँ. Yeah. Okay, so like here comes the procedure, like process क्या होता है जब GSOC के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो like 2 steps हैं, one is for organization and second is for students. Okay, like जैसा अमन ने बताया, students का सिलेक्शन और या फिर उनका जो वर्क करने का वो ठीक से वर्क करे या नहीं, ये सब मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। Okay. लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। Okay. तो काफी सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, तो गूगल समर ऑफ कोड में गूगल उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है उन ऑर्गेनाइजेशंस को, लाइक Okay. ताकि स्टूडेंट्स वर्क करें, क्योंकि वो पे कर रहा है। तो ऐसे ही वो Okay. हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं सिलेक्ट कर सकते। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज लाइक फर्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई, ओके, इन मंथ ऑफ जनवरी आई थिंक। Organizations apply, and if the organization is worthy, if Google thinks so, then this organization gets selected, and after its selection, the organization release problem statements. So Okay. like the on which the students can work during the summer. Okay. And from this step, like the second step will begin. It's the student application period. The student can see what organizations are selected, what are their problem statements. Okay, so what are the problem on which they can work. They choose the 1 or 2 problem statement. Like Ujjwal, there are 3 limit for proposals, right? हाँ, स्टूडेंट
एक स्टूडेंट 3 प्रपोजल एक बार में सबमिट कर सकता है। सबमिट कर सकते हैं। Okay, so like the students select 3 problem statements. They can be, they must be from 3 different organizations. Okay, Okay. and then create a document like कैसे कैसे proceed करेंगे उस problem statement को solve करने के लिए समर में. So specifically we use a term called a proposal. Okay. Okay, तो students proposal create करते हैं हर problem statement के लिए अलग अलग organization के लिए and they submit them. After that it's in the hand of the organization to select a student. लाइक वो स्टूडेंट है उन्हें प्रपोजल पढ़ के लगता है कि वर्दी है काम कर पाएगा, देन द स्टूडेंट गेट सिलेक्टेड। सो दिस इज द होल प्रोसेस। तो और ये स्टूडेंट्स के अप्लाई करने की डेट क्या होती है अप्रोक्स? ओके उज्जवल, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन। लाइक इन बाय फरवरी last week the organizations are announced. Okay. And last year it's the timeline of the 2020 program. Okay. And by the end of the March the student application period ends by the last week of March. पहले 16 से 31 मार्च का पीरियड हमारे लिए स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड था जिसमें हमें अपना प्रपोजल सबमिट करना था उनके डैशबोर्ड पे। ओके, एंड लाइक ये मैं 2020 की शो कर रहा हूँ। उज्जवल, कैन यू शो इन अनदर टैब लाइक 2021 का रिलीज हो चुका है टाइमलाइन? ओके, एक मिनट। Let me check. Okay. उनके होम पेज पे अवेलेबल होते हैं तो कोई भी जाके देख सकता है। Yeah, 2021 programs announced. ओके, जब तक वो शो कर रहा है मैं रीड कर देता हूँ। मैं जीसॉक के आर्काइव पे चले जा रहा हूँ बार-बार। ओके, टाइम लग रहा है। ओके, सो जनवरी 30 है ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन। ओके, लाइक एक चीज मेंशन करूंगा मैं, अभी हमारे टाइम में ये पेंडेमिक की वजह से जीसॉक का टाइमलाइन शिफ्ट हुआ था। ओके, तो टोटल अराउंड 1 मंथ का डिफरेंस पड़ा था हमें। और अभी मैं चेक कर रहा हूँ 2021 का वो और शिफ्टेड दिख रहा है मुझे। ओके, सो मुझे शेयर कर दे अगर। नहीं तू शेयर कर दे। ओके, आई एम शेयरिंग। स्टूडेंट एप्लीकेशन का एक महीने से 1.5 महीने का पीरियड होता है, राइट? ओके। और वो पीरियड जस्ट फॉलो होता है जब ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो जाती है। सो माय टैब इज विजिबल? यस। हाँ, या यू कैन सी दिस टाइमलाइन। या ओके, वेट, सो लाइक इट हैज बीन कहां पे मेंशन्ड है? नहीं, तुमने वो गलत वाला प्रेजेंटेशन तुमने खोल रखा है मेरे ख्याल से। ओके, गलत टैब शेयर हो गया होगा। स्क्रीन 1। या ओके, अब ये वाली टाइमलाइन है। ओके, सो लाइक द ऑर्गेनाइजेशन डेडलाइन इज February 20। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन इस बार 10 मार्च को इतना लेट अनाउंस हो रही है। ओके, पिछली बार हमारे टाइम में 20 फेब था। ओके, सो लाइक इफ यू आर एमिंग फॉर 2021 दिस इज द टाइमलाइन, यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट। ओके, मार्च में ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो जाएगा। आफ्टर दैट द स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड इज फ्रॉम 29 to 13 अप्रैल। ओके, इसमें आप प्रपोजल वगैरह अपने ड्राफ्ट करते हैं और सबमिट करते हैं उनके डैशबोर्ड पे। ओके, एंड आफ्टर दैट दिस इज द रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट 17 मई। ओके, 17 मई को रिजल्ट आ जाएगा तुम सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। और कंपेयर करूँ 2020 से 5th of May को हमारा अनाउंस हुआ था। ओके, और ये मेंटर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एक आपको मेंट कर रहा होगा, मेंटर? या जब ये ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट के लिए 1 या 2 मेंटर असाइन कर दिए जाते हैं। ओके, तो वो प्रोजेक्ट मेंटर्स लीड करते हैं। तो जो स्टूडेंट काम करता है उसका वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं,
क्वालिटी कोड Okay. लिख रहा है कि नहीं, वो सब मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। Yeah. और ये पूरा इंडिविजुअल है ना? Yeah. Like इंडिविजुअल होता है, लाइक मोस्टली केसेस में इंडिविजुअल होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस देखे हैं मैंने, लाइक जो कोलैबोरेट करके भी काम कर रहे होते हैं, 1 or 2 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखा है मैंने, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। अगर उन्हें लग रहा है कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 2 लोग आपस में कोलैबोरेट करके कर सकते हैं काम, सो दे लाइक दे प्रेफर सच प्रोजेक्ट। ऐसा पॉसिबल है। ओके, ओके, तो लाइक ये टाइमलाइन थोड़ा शिफ्टेड है, और कोडिंग पीरियड 7 जून से 16th of August. Okay, and after that, the final submission is from 23rd August. Okay. So this is the whole timeline. Like about a week shifted लग रहा है मुझे ये, week or 10 days. और ये 2 मंथ का ही है अप्रोक्स 2021 में। 2 months कोडिंग पीरियड 3 months का होगा। कोडिंग पीरियड अप्रॉक्स 3 months टच कर देता है। अप्रॉक्स 3 months टच करता है। ओके, ओके, अप्रॉक्स 3 months हो ही जाता है। तो नेक्स्ट हमारा, जैसे हम पक्स पे जाने वाले हैं ना, तो उससे पहले ये एप्लीकेशन में थोड़ा डिटेल में अगर देखें, तो अगर आप में से कोई अपना प्रपोजल शेयर कर सके या इनसाइट्स दे सके। हाँ, वैसे मेरा प्रपोजल पब्लिक है। मैं लिंक शेयर कर दूं क्या? वो तुम शेयर कर दोगे? अभी या थोड़ा फिर आप अभी एक्सप्लेन कर देते कि उसमें क्या क्या ऐड करना होता है, मतलब कुछ की पॉइंट क्लियर we can show it. Let me share my screen. कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलर फॉर्मेट को प्रेफर करती हैं, तो वो उनके वेबसाइट पर लिस्टेड होगा कि ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। और कुछ में ओपन फॉर्मेट होता है कि आप किसी भी तरह से अपने अकॉर्डिंग अपना बेसिक फुलफिलमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करो ताकि वो डिसाइड कर सकें। ओके, I think while he is sharing, Ujjwal, we can go for the perks, like why you should participate. You can share your screen. So पहला जो पॉइंट आता है वो होता है कि आपको बहुत सारे पूल होते हैं प्रोजेक्ट्स के, उसमें आपको चूज करना होता है, राइट। डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा, तो उसमें से आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है ना, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और फिर फ्लेक्सिबल होता है आपका पूरा वर्क, अप्रॉक्स 3 months होता है टोटल आपके पास, और आप बीच में कुछ टाइम भी निकाल सकते हो, तो आपको पूरे के पूरे 3 महीने तो काम नहीं करने होते, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पूरे प्रोजेक्ट के टाइम में। Yeah, like it's like 9 to 6 वाला जॉब, लाइक तुम्हें बस अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, जो भी तुम्हारे माइलस्टोन्स है। ओके, तो वो तुम कभी भी कर सकते हो। हाँ, बट यू हैव टू कोलैबोरेट विद द मेंटर एंड देयर आर सम टाइम जोन डिफरेंसेस, सो यू हैव टू कीप दैट। ओके, तो इसमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करती है कि मेंटर कभी-कभी ऐसे करते हैं कि मीटिंग स्केड्यूल कर दिया, वीकली मीटिंग्स, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट आपका जो इंटायर प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है, वो आप मेंटर से बात करके कि लाइक एक वीक में अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास कि बोल सकते हो आप ऐसा। बट फिर क्या है कि एट द एंड आपको अपना प्रपोज टाइमलाइन जो आपने दी होती है अपने प्रपोजल में एप्लीकेशन के टाइम में, वो आपको एटलीस्ट फॉलो करना होता है, राइट। ओके, तो अगर आप वो डेडलाइन मीट करते हो देन ऑल वेल ऑल गुड, आप सही जा रहे हो। तो इसमें वीकली मंथली टाइप नहीं होता? मंथली होता है, जैसे हाँ मंथली डेडलाइंस होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं, और अगर आप उसको मीट नहीं करोगे तो फिर आप एप्लीकेशन से कट ऑफ हो सकते हो, मतलब आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है, राइट। तो वो एक मंथली डेडलाइन है, और वीकली डेडलाइन जैसा मैंने बोला मेंटर पे डिपेंड करता है। हाँ, तो इंटरनेशनल कनेक्शन आपको बनते हैं क्योंकि मोस्टली ओपन सोर्स में जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ एक कंट्री के नहीं होते, लाइक इंडिया के ही नहीं होंगे, तो बाहर के कनेक्शन आपको बनेंगे, लिंक्डइन का नेटवर्क आपका ग्रो होगा। फिर आपको वो प्रोजेक्ट पे एनालाइज कर रहे होंगे तो वो आपको रिकमेंडेशंस देने के भी पास चांसेस होते हैं वैसे लोग, पर रिकमेंडेशंस रेयर होते हैं वैसे, बट पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, राइट। ओके,
उस तरह से आपका कनेक्शन ग्रो होता है। ओके, देन वो कुछ अपडेट्स के ऑर्गेनाइजेशन बारे में भी एक बार बता दीजिए ना। कौन सा अपडेट? आपने बताया था ना वो अच्छा। वीकली और डेली वाला, वहाँ से। ओके, हाँ, वर्क। वैसा ऐसा है कि जो काम करने का तरीका है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग है। ओके तो उज्ज्वल अगर अपने मेंटर से वीक में एक बार कांटेक्ट करे तो चलता था, पर मुझे रोज़ अपडेट्स देने पड़ते थे। रात को 8 बजे मेरा फिक्स टाइम था। ओके IRC ज्वाइन करना होता था और वहाँ पे टाइप करके सारे अपडेट्स देने होते थे कि क्या क्या काम किया। ओके उसके बाद दिन भर में जब तक तुम IRC पे एक्टिव हो वो काउंट करते थे कि तुम उस टाइम तक काम कर रहे हो। ओके IRC पे भी एक्टिविटी दिखानी पड़ती थी, उनके जो टॉक है, उनका एक चैनल है, वहाँ पर भी एक्टिविटी दिखानी पड़ती है। तो वो आपको कितना शो करना है आप एक्टिव हो, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। ओके। तो डेली आपका कितना टाइम कंज्यूम होता था अप्रोक्स, आप तीनों बता सकते हो? तो मेरा ऑन एन एवरेज 30 आवर्स वीकली गया होगा। ओके, वीकली 30 आवर्स। एंड द सेम विथ मी, एवरेज चला एवरेज। जाता है। हाँ, एवरेज 30 रहा। और जो लास्ट पेज था फाइनल इवेल्यूएशन का, उसमें मेरा थोड़ा हेक्टिक हो गया था, ओके क्योंकि जो मेरा प्रपोज्ड वर्क था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो ओके उधर मैंने काफी वर्क करा था लास्ट मंथ, अगस्त में। और वरना 30 ही रहा होगा एवरेज। बाकी ओके अगस्त में तो काफी करना पड़ रहा था, ओके। क्योंकि मेरे मेंटर्स चेंज हो गए थे इन द मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट। अरे और ओके ओके थोड़ा मिसकम्युनिकेशन वगैरह, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ गया था हैंडल करने के लिए। सो टोटली लाइक 30 to 40 एवरेज होता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, और लोगों को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। ओके 30 to 40 आवर्स पर वीक। ओके। डेली 4 आवर्स मान सकते हैं, 4.5। राइट। हाँ, और हमारा ऐसा था, अभी सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, तो हमारा 2-3 वीक ऐसे बीच में मिस हो गया, तो हमें बर्स्ट मोड में भी काम करना पड़ा कि किसी वीक बहुत ज़्यादा काम किया और किसी वीक बिल्कुल ही नहीं काम किया। ओके। और तब इंटर्न भी चल रही होगी आप लोगों की? हाँ, Like- वो भी मैनेज करना पड़ता है जिसका होता है। वो फिर ओके, क्योंकि ये सब Like Aman can tell you Internship- better. हाँ, मेरी इंटर्नशिप थी तो मेरे को साथ में GSOC भी करना था। ओके तो 1 मंथ का था जो मेरा कोलैप्स हो रहा था। 1 मंथ में 2 महीने की इंटर्नशिप थी और 3 मंथ का GSOC था। ओके राइट। तो GSOC का फर्स्ट मंथ और इंटर्नशिप का लास्ट मंथ ओके वो कोलाइड हो रहा था। ओके तो उसमें सुबह सुबह तुम्हें करना पड़ता है अपना इंटर्नशिप का काम जिस ओके कंपनी के लिए कर रहे हो, और उसके बाद रात में तुम्हें करना पड़ता है GSOC का काम। ओके वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, पर वो 1 महीने था, उसके बाद सब लाइट हो गया था। ओके Yeah. और काफी मैनेज करना पड़ता है, एक दूसरे को पता ना चले। ओके हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। हाँ, फॉरेन ट्रिप्स का अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के केस में। देन आप ऑर्गेनाइजेशन के टूल्स, एप्लीकेशंस, एनवायरनमेंट एंड वर्कफ्लो से फेमिलियर हो जाते हो। ओके जैसे 3 महीने का जो पीरियड है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलीजेस भी देखने को मिल सकते हैं, तो पूरे रिलीज साइकिल को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके देन आप अगर ओपन सोर्स में नए हो तो आपको पूरे कोड को कैसे मैनेज करते हैं और पूरे सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट मेंटेन करने का जो लाइफ साइकिल होता है, पूरे डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल आप देख सकते हो कैसे मेंटेन होता है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, राइट। ओके। और ये फॉरेन ट्रिप्स मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही होती है? हाँ, फॉरेन ट्रिप्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है कुछ ऐसा ईयरली मीट या ऐसा कुछ। तो जैसे नोम के केस में होता है, ओके केडी के केस में होता है, तो वो नॉम लोग के ईयरली। फेडोरा। हाँ, तो वो लोग आपको फंडिंग देते हैं कि आप फॉरेन ट्रिप अटेंड कर सको उनकी, और इन पर्सन डेवलपर्स से, मेंटर से मीट कर सको। वहाँ पे आप फिर टॉक्स भी दे सकते हैं। तो मेरे केस में इस बार वो पूरा इवेंट वर्चुअल हुआ, और मुझे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना था, तो उसमें मुझे 3 मिनट का टॉक भी अटेंड करना था और मुझे प्रेजेंट करना था। तो वो इस बार वर्चुअल हुआ और वो भी मैं पार्टिसिपेट किया था इस बार। ओके। फिर आप प्रोजेक्ट की और ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, कैसे इवॉल्व हुआ प्रोजेक्ट, किसने इनिशिएट किया, कैसे नए नए वर्जन अपग्रेड हुए। देन आपके मेंटर्स जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं प्रोजेक्ट के मेंटेनर, जो प्रोजेक्ट को बहुत
ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, राइट? ओके तो उनके साथ जब आप प्रोजेक्ट के पे वर्क करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। ओके तो और नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइपेंड आपको मिलेगा, फिर आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा क्योंकि आप मोस्टली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे ही वर्क करते हो बहुत सारे केसेस में। तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देगा और रिज्यूमे में आप वो पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट? ओके और फिर ब्रैगिंग राइट्स होते हैं अगर बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल के टेंसरफ्लो पे आप अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो दैट इज़ अ बिग थिंग। सो वो भी टैगिंग आप राइट्स मतलब जैसे सब उज्जवल ने नोम में करा है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप कंट्रीब्यूट करते हो, आपके उतना ही कंट्रीब्यूशन की वैल्यू ज्यादा है। ओके उज्जवल ने वैल्यू वो भी ज्यादा किया है। था, कोई टेंसर फ्लो में करता है तो वो पूरा टेंसर फ्लो पे जो यूज कर रहा है वो सबको इन्फ्लुएंस करेगा, वो तुम्हारा कोड चेंज। और अप्रोक्स स्टाइपेंड बता सकते हैं कि स्टाइपेंड कंट्री वाइज डिपेंड करता है। तो और ये पब्लिक ही है तो अपने इंडिया के हिसाब से $3000 होता है स्टाइपेंड, राइट? और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है। फॉर 3 और ये मंथ रेंज इसका है, हाँ, फॉर 3 मंथ्स। ओके और इसका जो मिनिमम रेंज है वो 3000 से लेकर 6000 के रेंज में आपका स्टाइपेंड डिसाइड होता है और वो होता है आपके कंट्री के परचेजिंग पावर पे। और इंडिया में $3000 का होता है। ओके हम्म। ओके और मोस्टली जो भी ओपन सोर्स के जितने भी मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो परचेजिंग पावर पे डिपेंड करते हैं। ये स्टाइपेंड डिसाइड करने का जो एस्पेक्ट होता है। तो ओके ऑलमोस्ट सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में यही होता है 3000 इंडिया के लिए और फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफर करता है, वेरी करेगा। ओके ओके प्रपोजल दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। देख रहा है। प्रेजेंटेशन हाँ ठीक, साइज छोटा कर दें। साइज 2 ही वेरिएंट है। मिनिमाइज मिनिमाइज। अरे ठीक है फुल स्क्रीन फुल कर और स्क्रीन पे जा रहा है वो। ठीक है। हाँ ठीक है ओके Okay, yeah, so this is the project proposal that I sent for GSOC ओके for in case of my organization. ओके So it's a really formal document. You have to give it in a really structured manner. ओके So I'll just give the main points of this document. तो So ये कंपनी के first, ने वो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया था स्ट्रक्चर की ये एक्चुअली जो पास स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने तो किसी को कांटेक्ट किया था और तो उन्होंने बस मुझे बताया था कि अपना प्रपोजल शेयर किया उन्होंने। ओके ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले स्टूडेंट्स पार्ट ले चुके हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया करो और फिर ओके उनसे उनका प्रपोजल मांग लो, शेयर कर देते हैं। ओके या फिर किसी और ने, जैसे मैंने अभी मीडियम पे डाला हुआ है और नेक्स्ट ईयर सबको दिखेगा, तो कोई और भी कोई ना कोई डाल ही देता है। ओके ये हम तो आइडिया डिस्क्रिप्शन मिल में गया दे था। देंगे लिंक हाँ, ये लिंक दे देना, मैं शेयर कर दूंगा। तो हाँ, चार चार फॉर्म, हाँ 4 की पॉइंट्स हैं: एब्स्ट्रैक्ट, डिलिवरेबल्स, टाइमलाइन, क्वेश्चनर। क्वेश्चनर ये है ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, जिसमें ओके 8-10 क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने जो खुद स्पेसिफाई किए होते हैं उन सबके आंसर करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट में वही कि तुमने, अब हर ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉब्लम सेट्स होते हैं जो वो सॉल्व करवाना चाहते हैं GSOC स्टूडेंट से। ओके तो उसमें से कोई एक प्रॉब्लम हम कोई भी स्टूडेंट चुनता है, उस पर एब्स्ट्रैक्ट लिखता है कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, वो प्रॉब्लम है क्या, किस ओके तरह से अप्रोच करेगा, ओके इसका तो सोल्यूशन कैसे आप निकालेगा। जिस प्रोजेक्ट को मतलब सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपका आइडिया क्या है हाँ, ओके मेरे केस में हाँ बिल्कुल आइडिया क्या है भाई, ओके करेक्ट। तो अब तुमने एब्स्ट्रैक्ट में ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, अब ओके डिलिवरेबल्स में तुम अब अपने उसको ब्रेक करो की पॉइंट में कि तुम किस तरह से स्ट्रक्चर करके कोडिंग वगैरह करोगे, क्या मेन प्रॉब्लम है। ओके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको ब्रेक डाउन करो की पॉइंट्स में किस तरह से तुम हैंडल करोगे। ओके तो और बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने भी किया था, तो जो मेरा प्रोजेक्ट था मैंने थोड़ा बहुत काम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस से पहले ही कर लिया था। अच्छा ओके इससे क्या होता है कि स्टूडेंट में क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है कि आपने सही में कुछ काम किया है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ओके आप उस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो जो ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल है। ओके तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था और वो काम भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि मैंने क्या क्या काम किया है। ओके
स्क्रीनशॉट्स डाल दिए थे कि अभी करंटली मैं क्या इश्यूज फेस कर रहा हूँ। ओके, राइट, उनसे एक और उनको लाइक भरोसा हो जाता है। या राइट। उसके बाद जो भी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सब सेक्शंस में डिवाइड किया और हर सेक्शन को किस तरह से हैंडल करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट CI/CD होता है। तो एक ओके, टास्क मेरा ये था कि एक CI बिल्ड प्रोसेस क्रिएट करना था। ओके, जो भी फेलिंग टेस्ट थे उनको रन करने के लिए पोस्टग्रेस पे। तो मेरा प्रोजेक्ट था कि जो OpenMRS मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है वो ओके, MySQL सपोर्ट कर रहा था। ओके, तो आई हैड टू पोर्ट दैट एंटायर सिस्टम टू पोस्टग्रेस। ओके, So all the tests that were running on MySQL were to be run on Postgres as well. ओके, So I had to create a CI plan for that as well. So ये की पॉइंट देखकर मैंने उसको ब्रेक किया सब सेक्शन में। ओके, और अब हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइमलाइन, जो कि तुम्हें बहुत ध्यान से क्रिएट करनी पड़ती है कि तुम क्या क्या करोगे, कितने टाइम में कितना कोड तुम्हारा रेडी हो जाएगा। ओके, राइट। हाँ, तो कोडिंग पीरियड स्टार्ट होगा। कोडिंग पीरियड के से पहले एक कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है। जब ओके, GSOC स्टार्ट होता है तो पहला 1 मंथ मिलता है कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए, उसके बाद 3 मंथ मिलते हैं कोडिंग के लिए। ओके, तो कम्युनिटी बॉन्डिंग में बिफोर 4th में था आई गेस। सो उस टाइम पे तुम क्या करोगे 1 महीने में, तो उस 1 महीने में सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से वो लोग कोड स्ट्रक्चर करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब पढ़ोगे। ओके, उसके बाद पहले महीने के डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे तुम्हारे, फिर 1 महीना ख़त्म होगा, उसके बाद पहला फेज एवेल्यूशन होगा 29 जून टू 3 जुलाई। ओके, उसके बाद अगले फेज का कोडिंग स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मेंटर एंड स्टूडेंट्स सबमिट फेज टू एवेल्यूशन। ओके, ये सब हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करके देना होता है हमें। ओके। मतलब आप क्या प्लान कर रहे हो एक तरह से? हाँ, उसका पूरा प्रॉपर टाइमलाइन। तो ये जो फर्स्ट exactly. पार्ट क्या बताया आपने, कम्युनिटी वाला? तो जब भी GSOC में सिलेक्शन के बाद जब GSOC प्रोग्राम स्टार्ट होता है ओके, तो पहला महीना मिलता है कि तुम कम्युनिटी में खुद को इंट्रोड्यूस करो, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करो, ओके, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से फेमिलियराइज हो जाओ, तुम अपने मेंटर से फेमिलियराइज हो जाओ, ओके, और भी लोग कम्युनिटी के लीड डेवलपर्स हैं उनसे फेमिलियराइज हो जाओ। ओके, तो उस टाइम पे तुम्हें एक्टिव रहना पड़ता है उनके चैट पोर्टल्स पे। ओके, जैसे IRC वगैरह पे तुम्हें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, बात करना ओके, होता है, और कोडिंग भी करना ही होता है, हल्का फुल्का कोडिंग रहता है उस टाइम पे। ओके, मेन कोडिंग पीरियड एग्जैक्ट 1 मंथ बाद स्टार्ट होता है, कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड के एंड होने के बाद। ओके, तो ये ऑफिशियल कोडिंग पीरियड जो 1 जून से स्टार्ट हुआ था हमारे केस में। ओके, और फिर क्वेश्चन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए थे, वो वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, ओके, वो सारे तुम्हें आंसर करने होते हैं प्रॉपर वे में, लाइक हु आर यू, व्हाट आर यू स्टडिंग, ओके, OpenMRS, how did you come to know about OpenMRS, ओके, and then ओके, questionnaire and then this। हाँ, तुम्हारा कुछ प्रोफाइल रिलेटेड, मतलब पहले से अगर कुछ काम किया हुआ है तो उसके भी लिंक्स, गिटहब के लिंक्स, वो ओके, सब डालने पड़ते हैं। ओके, देन फाइनली खत्म, ये तुम्हारा हो गया ओके। प्रपोजल। तो इससे उनको मतलब आपने जो पहले से इंफॉर्मेशन दी है उनमें अगर उनको कुछ चाहिए और वो रह गया है तो वो इसमें कवर हो जाएगा। या राइट। ओके, प्रेजेंटेशन पे शिफ्ट करते हैं उज्ज्वल। ओके, Okay. ओके। So the right organization. choosing the right organization. So Okay. before, yeah, Ujjwal, you'll start. ऑर्गेनाइजेशंस की वैरायटी होती है, जैसे हमने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होते हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज किया होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, ये हमारे वर्किंग टूल्स होंगे, ये ओके, हमारा प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए ये होगा। ओके, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए लैंग्वेज भी वेरी कर सकते हैं, टूल्स भी वेरी कर सकते हैं। ओके, और तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले, तो हमें इन सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि हम जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं वो, या फिर हो सकता है हम लैंग्वेज नया सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इन दिस लैंग्वेज, ऐसा कुछ। फिर ओके, कोई पर्टिकुलर फील्ड हुआ, जैसे ML स्टार्ट करना है या वेब डेवलपमेंट किसी को स्टार्ट करना है, तो
उस टाइप से भी प्रोग्रेस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चूज करने का जो कंसिडरेशन है वो उसमें ले सकते हैं इस चीज़ को, राइट। ये तो एक भी पॉइंट हुआ। मतलब एक ये भी है कि हमारा स्किल डोमेन क्या है, उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट्स क्या है। स्किल डोमेन ऑलरेडी जो आपके पास है वो, या ओके फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, लर्न ओके करना चाहते हो, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ओके Ujjwal, you can show the organization's page on their official site. ओके, हाँ। तो और जो ऑर्गेनाइजेशन जो देख रहे हो यहाँ लिखा है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो लाइक the organizations are not just restricted to a particular domain, like Okay. if you are going to do web development and you are restricted to that only. ओके तो ML से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन टेंसरफ्लो से मिली है, रोबोटिक्स से रिलेटेड आर्डिनो भी आता है यहाँ पर GSOC के लिए। Yeah. ये सब टेक रहा, और लाइक कोई ऐसा है जिसका फील्ड ऑफ स्टडी में मेजर्स बिल्कुल अलग जा रहा है, लाइक वो फिजिक्स पढ़ रहा है, ओके। सो लाइक देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CERN, और काफी हैं जो फिजिक्स या एस्ट्रोनॉटिकल साइंस वगैरह इन सब पे भी काम कर रही होती है, तो लाइक उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है गूगल से, मतलब। ओके जैसे देख सकते हो आप Django प्लेटफॉर्म, Django खुद अपना ऑर्गेनाइजेशन एक आप प्रोजेक्ट प्रपोज फुल करता है। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे, आप सिर्फ विंडो शेयर कर रहे हो क्या? या तो हाँ, टैब शेयर है ना। वेबसाइट के बारे में भी पता चल जाएगा बेटर अगर वो पहले। या यू कैन स्विच द टैब। अच्छा, URL, ओके, URL देखना है, मैंने यहाँ शेयर करता हूँ। विंडो शेयर कर दे, और स्लाइड्स के बीच में चेंज भी कर सकता है, कुछ शो कर रहा वही होगा कर रहा हूँ। हाँ ओके, अब है ना। हाँ ठीक है। या तो वेब के कैटेगरी में Django और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल होती है, मोजिला का भी है, ओके राइट सर। आप डिफरेंट यहाँ पे सर्च कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया था ओके फर्स्ट में, कि चूज करने का बहुत ऑप्शन होता है, डेबियन, फेडोरा, ओके राइट। ओके। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें क्या है, एक बार आप बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, हाँ। ये या तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी तरह का डिज़ाइन डेवलप कर रही होती है, जैसे डेबियन का अपना ऑपरेटिंग ओके। सिस्टम है, फेडोरा का भी अपना फेडोरा ऑपरेटिंग इज देयर। सिस्टम। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर रही होती है। ओके तो उनसे रिलेटेड कुछ अगर प्रोजेक्ट्स हों तो वो आप यहाँ पे लिस्टेड देख सकते हो, ओके। राइट। तो उसमें आप बता ये रहे थे कि मतलब फिजिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। या हाँ, यहाँ या पे तो है ना, अच्छा ओके 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 साइंस एंड मेडिसिन। तो ओके क्योंकि इस टाइप के GSOC कैटेगरीज में में ना, हाँ, इस टाइप के हाँ कैटेगरीज में मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा ओके कि या इम्प्लीमेंटेशन एक्जिस्टिंग होता है। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करेंगे और फिर किसी सॉल्यूशन पे रीच करना होगा हमें, अगर रियल लाइफ सॉल्यूशन कोई होगा तो, ओके। प्रॉब्लम हुआ तो। लाइक कोडिंग करना तो एक मस्ट ही है। तो लाइक कोई प्रॉब्लम है लाइक फिजिक्स से रिलेटेड, तो उनका उन्हें मशीन लर्निंग के थ्रू कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो लाइक आई थिंक फिजिक्स पर्सन knowing the coding better would be able to complete the project in a complete way, in a good manner. ठीक, लाइक तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की, तो नहीं हाँ कर तो सकते। फिर लाइक नहीं कर सकते। काफी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मिल जाता है ऐसे ओके प्रोजेक्ट्स। टाइम लगता है राइट प्रोजेक्ट और राइट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने में, ओके। ओके और लाइक वाइड वैरायटी अवेलेबल है, तो आराम से टाइम स्पेंड करो एंड यू विल गेट अ प्रोजेक्ट ऑफ योर चॉइस। ओके। ये अभी so you आपने see क्या किया है? in GSOC there are like a large variety of different projects, ओके so with varying difficulty, so that is why it's not just restricted for BTech students, so there are Okay. master Yeah. students and PhD students as well. ओके तो अगर कोई Yeah. फिजिक्स वाला है तो बीटेक की जगह अगर कोई मास्टर वाला कर रहा होगा उसको ज्यादा नॉलेज होगी ऑफ कोर्स, ओके तो उन लोगों को भी अलाउ किया जाता है, तो कंपटीशन में वो लोग भी होते हैं। ओके और GSOC ये पूरा आर्काइव मेंटेन करता है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करता हूँ ओके तो इसमें मुझे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, फिर प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग होगी ओके। कि पास्ट ईयर में प्रोजेक्ट्स जो भी अच्छा कंडक्ट हुए हैं, और फिर उनके बारे में फिर फर्दर प्रोजेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन होता है।
ओके। एंड जो भी वर्क हुआ है पूरे 3 मंथ कोडिंग पीरियड में, उसका कोड फाइनली अवेलेबल कराते हैं। ओके, तो ये पूरा एक, हाँ, यहाँ पे आपको पूरा ऐसे स्टूडेंट का वर्क मिल जाएगा, राइट। तो ओके, मुझे भी अपना प्रोजेक्ट का कोड ऐसे शेयर करना था। ये सब पूरा फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो इनको ये एक टिपिकल आर्काइव मेंटेन करता है। ओके। एक बार वो बता सकते हैं आप, मतलब वो टेक्नोलॉजीज वगैरह क्या क्या है वो दिखा रहा था वो? हाँ, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टेक स्टैक होता है। तो ओके। इस केस में हमारा अच्छा, पाइथन, तो ये जावास्क्रिप्ट, रिक्वायर्ड रिएक्ट। होगा, इन टेक्नोलॉजीज पे वर्क करना होगा। हाँ, लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ये टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के ओके, अंडर में। ओके, ओके, ऐसा नहीं है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। लाइक ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काफी प्रोजेक्ट होंगे, तो वो सारे प्रोजेक्ट इन टेक स्टेक के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। ओके, ओके, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। हाँ, हम्म, मैं प्रेजेंटेशन वापस से शेयर करता हूँ। हाँ, या cool. ये हमने ओके, डिस्कस कर लिया। ओके, बेस्ड ऑन तो लाइक सब, टाइम इन हैंड। हाँ, हाँ, मैं ओके, स्टार्ट करता हूँ। सो ओके, ओके, इसी या तो तुम्हें कोई स्किल आती है और तुम उस स्किल के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो। ओके। कूल, तो तुम्हें ऑफ कोर्स कम टाइम ही लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने से पहले। पर अगर तुमने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चुनी जिसका तुम्हें प्रोजेक्ट अच्छा लगा, हाँ सही काम कर रहे हैं, पर तुम्हें स्किल सेट नहीं आता जो रिक्वायर्ड है, ओके, तो तुम्हें ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले वो स्किल सेट सीखना पड़ेगा, ओके, उसके बाद उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लाइक बेस्ड ऑन टाइम इन हैंड यही पैरामीटर है कि अगर कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पहले स्टार्ट करो जीसॉक के लिए। ओके, उनके जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे 3-4 मंथ्स पहले, ताकि तुम पहले वो स्किल सीख भी जाओ, उसके ओके, बाद उसमें कंट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि जीसॉक में सिलेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव होकर कंट्रीब्यूशन करो ओके, मेन सिलेक्शन प्रोसीजर प्रोसेस से पहले, राइट। मतलब अगर मेरा जीसॉक का सिलेक्शन फेब में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं जनवरी से उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव होकर थोड़ा बहुत काम करने लगूंगा, कंट्रीब्यूट करने लगूंगा उनके कोड बेस में, बहुत ओके, छोटे छोटे इजी बग सॉल्व करने लगूंगा। ओके। पर वो कंट्रीब्यूट करने के पहले लिए भी मुझे वो स्किल सेट आना जरूरी तो है ना। राइट। हाँ, सो यही वो पैरामीटर। ओके, Like December and January is a good time to start. Okay, ओके, like जब तक तुम्हें ऑर्गेनाइजेशंस तो शॉर्टलिस्ट कर लेनी चाहिए अपने लिए कि लाइक इन सब पे काम करना है मुझे। ओके, ओके, और अगर हाँ ओके, स्किल सेट है तो आराम से 1-2 महीने पहले स्टार्ट करो, जो जनवरी में अच्छे हो जाएगा सब, ओके, फेब तक। या ठीक। और लेकिन ऐसा भी नहीं है, लाइक ये मिथ भी है एक, लेट भी शुरू कर रहे हो और फिर तुम सही से टाइम दे रहे हो उस चीज को तो हो जाता है। हो जाता लाइक है। आई आई थिंक वी ऑल थ्री स्टार्टेड इन फेब, आई स्टार्टेड इन February. ओके, या Yeah, माइन वाज लाइक लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ओके, yeah, हाँ, सिमिलर, आसपास ही शुरू किया था हमने, 7 मंथ ओके, में। yeah, तीनों साथ में एक्चुअली थे, and लाइब्रेरी में बैठे रहते थे। ओके। yeah. ये एप्लीकेशन कब था आपके टाइम पे? Application ये was 17 March to 31st March ओके, application period. तो मतलब पहले से फेब से आप लोगों ने थोड़ा बहुत वर्क कर लिया था। हाँ, हाँ, फेब हाँ, के स्टार्टिंग से। एक्चुअली हाँ, वो वर्क प्रोजेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, बट वो वर्क ये तुम्हें बताने के लिए होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, हाँ कि तुम एक्टिव हो इसमें, ओके, काम कर रहे हो, कोड बेस में लाइक कंट्रीब्यूट कर रहे उनका कोड हो। बेस तुम हैंडल कर लोगे। हाँ, ओके, सिंपल सा ये करना होता है। ओके, ओके, क्योंकि काफी बड़े बड़े कोड बेसेस होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक 10 इयर्स 18 इयर्स पुराने भी होते हैं। तो अच्छा, फिर तुम हैंडल कर पा रहे हो इतने बड़े कोड बेस में, राइट, कोई इशू है छोटा बग का तुम उसे ढूंढ पा रहे हो इतने बड़े कोड में। तो राइट, तुम छोटे छोटे इश्यू सॉल्व करोगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसा अमन ने ओके, पहले भी मेंशन करा। ओके, राइट, Yeah. so like based on popularity of organization, so you see like the more popular the organization is, like the greater is the competition. राइट, So अगर Django Linux Foundation Git जो बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा लोग होंगे, राइट, राइट।
पर अगर सिर्फ GSOC में सिलेक्ट होना ही मोटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम इतने हाई कंपटीशन वाले एरिया में जाओ। Right. और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो GSOC में आती हैं, उसमें भी Okay. कंट्रीब्यूट करके GSOC में सिलेक्ट हो सकते हैं। सिलेक्ट होना उतना मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है उसके लिए। Okay. Okay, like I would like to add one more point. इसमें जैसे पहले की बताया कि दिसंबर के अराउंड काफी लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो लाइक ये जो पॉपुलैरिटी वाला जो पॉइंट है, इधर ट्रेड ऑफ है। अगर तुम पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में और बाद में वो सिलेक्ट नहीं होता फरवरी में जो लिस्ट आता है, तो लाइक ये तो काफी ट्रबलसम हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम पहले से ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हो जो कि मतलब काफी ईयर से GSOC में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो पॉपुलर तो हो गई, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो तुम श्योर रहोगे फेब तक भी कि ये तो सिलेक्ट होना ही है। तो वो एक जो अलग ही हेडक है कि ये सिलेक्ट होगा नहीं होगा, कि ऐसा तो नहीं फेब में ये सिलेक्ट नहीं हो रहा और फिर एकदम से चेंज करना पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हेडक चले जाता है। तो ये ट्रेड ऑफ है तुम्हारा। थोड़ा सा अगर तुम हायर कंपटीशन में जा रहे हो किसी अच्छे और की तरफ, तो उधर सिलेक्शन के पहले और के ही चांसेस हैं, तो तुम पहले से भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हो बिफोर फेब। और ज्यादा पॉपुलर है तो मतलब वर्क के बेसिस पे डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा, मतलब लाइक पॉपुलर ऐसा हो जाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स है, लाइक वी नो जेंगो, वी नो लिनक्स फाउंडेशन। और एक क्राइटेरिया हो गया कि GSOC लाइक काफी ओल्ड प्रोग्राम है, अभी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कितने ईयर से। तो ये सब जो ऑक्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये काफी ईयर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गूगल इन्हें हर ईयर चूज करता है। ओके, तो लाइक ये डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे तो नहीं है रिजल्ट अवेलेबल कि ये वाला और कितनी बार सिलेक्ट हुआ है, लाइक बट देयर आर सम स्क्रैपर्स, या फिर कहीं ना कहीं डेटा मिल जाएगा और एक लिंक होगा, मैं शेयर कर दूंगा। वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, वो शो करता है कि ये और कितनी बार सिलेक्ट हुआ है। तो लाइक हम तीनों का जो था तो वो अराउंड 10 to 11 टाइम सिलेक्ट हुआ था GSOC में। ओके, तो ये मैं ट्रेड ऑफ बता रहा था। हमने लिंक डाला है वो प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन ये अगेन वही पॉइंट है कि हमें अगर कुछ इंटरेस्टेड ML में हम इंटरेस्टेड हैं तो ये चूज कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास वेब डेव या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑप्शन नहीं है। हमने जैसे देखा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो उनके प्रोजेक्ट भी होंगे, वो ज़्यादा मोस्टली वो सी के रिलेटेड होंगे। तो लैंग्वेजेस और वर्किंग एनवायरनमेंट का भी डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। राइट, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट पे ही प्रोजेक्ट है, आपको किसी भी फील्ड में बहुत वैरायटी बस। ये हमारी हम जो अभी बात किया ना, वो GSOC एनालाइजर, ये वाली लिंक आप ओपन करोगे तो उसमें आपको कुछ मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। राइट, हम वो प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे आपको, राइट, लिंक दे देंगे। विजिबल है ये GSOC वाली एनालाइजर की लिंक। GitHub पे अवेलेबल है। लाइक इट्स आल्सो ओपन सोर्स, लाइक पब्लिकली अवेलेबल है। तुम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होता है आप ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लेते हो, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ फर्स्ट कांटेक्ट बनाना होता है। कैसे मेंटर को कांटेक्ट करोगे, राइट, प्रोजेक्ट को अप्रोच करने का। तो वो सब आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है उनकी, मतलब ये अवेलेबल होगा ही होगा, विकी पेज होगा या फिर इनमें से लिंक होगी उस GSOC में जो ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है, वहाँ पे लिंक होगी जहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ये प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ पे इस मेंटर या इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप कांटेक्ट करने का पूरा प्रोसीजर आपका वहाँ से शुरू होगा। डिफरेंट चैनल्स होते हैं, तो मोस्टली हमारा जो मोस्ट चैनल कॉमन था वो IRC था। और IRC है ना, वो एक पुराना वर्जन ऑफ चैट कम्युनिकेशन है। तो करेंटली हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह है चैटिंग के लिए, बट IRC जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ओल्ड है और बहुत पुराने टाइम से, काफ़ी ईयर से चला आ रहा है।
तो वो एक चैनल है वो जो बहुत मतलब पॉपुलर होता है ओपन सोर्स में कम्युनिकेशन का। बाकी फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करती हैं जो उन्हें सूटेबल लगता है। तो उसमें फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन भी आपको विकी पेज पे या कहीं हेल्प वाले पेज पे ऑर्गेनाइजेशन पे अवेलेबल होता है। कुछ पॉइंट ऐड करने का? Yeah, like there are bug trackers. Like if you are contacting the organization directly, it's also okay. Or otherwise, you can like choose the project and find some small issue and directly try to solve them. Okay. So for that, you should know what are the bugs in this software. Okay, for those projects. तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं तो सबसे एसोसिएटेड कुछ बग ट्रैकर्स होते हैं। तो लाइक गिटहब का एग्जांपल लें तो गिटहब पे इश्यूज का टैब दिखता है हर रिपोजिटरी में, राइट। तो वहाँ पे छोटे बग्स हम ढूंढ सकते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से हम अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। ओके, और लेकिन अब जरूरी नहीं सारे जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो सब गिटहब पे ही अपना सोर्स कोड डालें। लाइक देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब, गिटलैब इज देयर एंड बिटबकेट एंड मेनी मोर। तो वो क्या है, फिर एक अलग से इशू बग ट्रैकर सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ओके, सेस भी होते हैं। तो लाइक Jira is popular. I think Aman Sorg was using that. Yeah, Jira. Yeah, right. Okay. तो वो सब जैसे उज्जवल ने बताया विकी पेजेस पे सब मेंशन होता है कि बग कहाँ पे लिस्टेड है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उनके। तो तुम वहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो बग्स को कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ। और लाइक जनरली देयर इज सम लेवल एसोसिएटेड विद बग्स कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ओके, तो उस काफी नेम हो सकते हैं उसके, बिगिनर, न्यू कमर एंड लो हैंगिंग। तो तुम ऐसे बग्स ढूंढ के सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, राइट, इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट चल। या कूल, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लाइक IRC के बारे में उज्जवल हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। लाइक कंसिडर इट एज अ ग्रुप चैट प्लेटफॉर्म। ओके, लाइक कम्युनिटी के चैनल्स होते हैं और सारे मेंबर्स वहाँ पे ज्वाइन होते हैं। सो यू कैन आस्क क्वेरी और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट्स देयर। ओके, और फिर द सेकंड प्लेटफॉर्म इज मेलिंग लिस्ट। ओके, दिस इज वन ऑफ द मीडियम। लाइक जो भी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ईमेल एड्रेस लाइक मेलिंग लिस्ट होता है। तो जब तुम उस पर मेल करते हो तो वो जिसने मेलिंग लिस्ट ज्वाइन कर रखा होता है सब पे जाता है। और तुमने मेलिंग लिस्ट ज्वाइन कर रखा है, कोई और उस पर कुछ सेंड कर रहा है ईमेल, तो वो तुम पे आता है। ओके, एंड द थर्ड इज फोरम। तो फोरम मोस्टली क्या होता है, लोगों के कम्युनिटी के सजेशंस लेने के लिए यूज होता है मोस्टली। तो लाइक मैं वर्क कर रहा था तो लाइक कुछ UI UX से रिलेटेड काम था सॉफ्टवेयर में। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो लाइक आई आस्क्ड ऑन फोरम टू द कम्युनिटी लाइक ये ऐसा रहेगा तो कैसा अच्छा होगा इस UX में, क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में। तो लाइक लोगों के ओपिनियन ले सकते हो, तो वो फोरम पे कर सकते हो। तो लाइक ये 3 प्लेटफॉर्म हैं जो तुम यूज कर रहे होंगे मोस्टली ड्यूरिंग GSOC। राइट। बग ट्रैकर दिखाऊं क्या? जीरा शो करूं क्या? Like we can show while showing our contribution. Okay. Yeah. Okay. डिफरेंट कैटेगरीज हैं बग्स की। तो जैसा हमने बताया था प्रोजेक्ट्स मैनेज करने होते हैं ओपन सोर्स वाले। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और गिटलैब और गिटहब फेमस है और अमन का जीरा पे था वो भी फेमस है। वो अलग एक प्लेटफॉर्म हुआ, गिटहब अलग एक प्लेटफॉर्म हुआ। तो हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ इश्यूज होंगे, राइट, और उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज वे में रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स हेल्पफुल होते हैं सारी ट्रैक एंड रिकॉर्ड के लिए। तो गिटलैब पे मेरा प्रोजेक्ट गिटलैब पे था, ऋषभ का गिटहब पे था और अमन का जीरा पे था, राइट है ना? या राइट। बग्स तो गिटहब पे इश्यूज वाले सेक्शन में हम जाएंगे तो हमें सारे करंट इश्यूज वाले दिख जाते हैं और फिर कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो कैटेगरीज दिख रहे हैं ना, ये मेंटेनर्स कैटेगराइज करते हैं इसे ताकि फिल्टर आउट करने में इजी हो। और डिफरेंट टैग्स यहाँ पे डलते हैं। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेंटेनर डिसाइड करता है कि कौन से टैग का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। सिमिलरली
तो यहाँ पे जो GitLab टैग थे था। मतलब वो क्या दिखा रहे थे? ये गुड फर्स्ट इश्यू हाँ, ये गुड फर्स्ट इशू ये बेसिकली ग्रामेटिकली होते हैं। तो जैसे अभी गुड फर्स्ट इशू जो लेबल है, ओके इनका जो लिटरल मीनिंग होता है वो ही मोस्टली यूज करते हैं मेंटेनर्स। तो यहाँ पे गुड फर्स्ट इशू से अपने को डिस्क्रिप्शन में टॉपिक जो आ रहा है गुड फॉर न्यू कमर्स है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर हो इस प्लेटफॉर्म पे या इस प्रोजेक्ट पे, ओके तो ये आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। ओके तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू कमर्स के लिए प्रेफरेबल लेवल था ओके वो था वो न्यू कमर्स टैग था ओके ऐसे। और ऋषभ के में लो हैंगिंग था। लो आई थिंक। और अमन अमन ओके मेरे तुम्हारे में क्या बोल? में या लो ओनली लो ओके अच्छा लो। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज रैंक किया हुआ है सर। ओके सिमिलरली गिटलैब पे भी हमारे इश्यूज होंगे, राइट? यहाँ पे सारे इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। ये मेरा ओके प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया था। ओके ओके, ये एक फीचर टैग हुआ। सिमिलरली इस टाइप के टैग्स होंगे, तो उससे आप अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो लेबल चूज करके कि कौन सा टास्क आपके लिए सुटेबल होगा। ये फिर लेबल का आप डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होगा आपने बताया? ये आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो डायरेक्टली। जैसे अच्छा इनिशियली ओके मेरे ओके प्रोजेक्ट में लेबल्स वगैरह नहीं थे न्यू कमर्स के लिए। ओके तो मैंने IRC चैनल पे ऐसे पूछा कि यू हैव नॉट टैग्ड द डिफरेंट इश्यूज बट अदर प्रोजेक्ट्स ओके हैव। तो ओके they pointed me to some of the issues, they sent me the links। तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर टैग्स अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके या ओके, लाइक ये सेकंड पॉइंट इसमें ये बता रहा है, तुम इंट्रोड्यूस करके भी कोई ना कोई अपने को टास्क असाइन कर सकते हो, ओके करवा सकते हो। ओके ओके तो लाइक और हाँ एक पॉइंट ये भी है कि कंट्रीब्यूशन में यही नहीं है कि तुम बग सॉल्व करो। ओके अगर तुम्हें एप्लीकेशन से बग मिलते हैं तो वो उनके चैट में जाओ, IRC में जाओ, वहाँ बोलो कि मुझे ये बग मिला, तो वो फिर राइट उसके लिए एक सेपरेट टिकट क्रिएट कर देते हैं कि ये अब अवेलेबल है, कोई भी सॉल्व करना चाहता है कर लो। ओके बग डिस्कवरी बग सॉल्विंग दोनों ही कंट्रीब्यूशन काउंट होता है। ओके हाँ राइट लाइक यू हैव टू बी एक्टिव इन द प्रोजेक्ट। कोई काम कर रहा है तो तुम टेस्टिंग कर सकते हो किसी और के एडिशन में। ओके ओके, तो वो सब तुम कर सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके, लाइक ये जो पॉइंट था लाइक मोस्टली हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। ओके, राइट तो लाइक वैलिड कंट्रीब्यूशंस हमें पहले से क्रिएट कर लेने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हमें राइट चूज करना चाहिए। राइट ओके मतलब अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारे इंटरेस्ट हो। ओके और अगर जैसे सिलेक्शन का जो डाउट आ रहा है तो फिर ट्रेड ऑफ लो और थोड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, राइट और ये सब चीजें जो काफी मैटर करती हैं इन द ओके एंड सिलेक्शन में। ओके एडवांस में थोड़ा वर्क करना काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है नहीं? हाँ, लाइक फिर भी इतना भी मत जाओ। अगर लाइक वी आर बैचलर स्टूडेंट तो अगर राइट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइक देयर आर प्रोजेक्ट्स, गिट इज आल्सो देयर, राइट लिनक्स फाउंडेशन आल्सो इज देयर। सो लाइक जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं तो वो उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ कोर्स ज्यादा होता है। ओके काफी PhD वाले भी उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, ओके जो डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग ओके सिस्टम वगैरह में। ओके तो वो वाला कंपटीशन अगर तुम ले सकते हो तो फिर ऑफ कोर्स लो। ओके हाँ, लेकिन एटलीस्ट इतना ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लो जो काफी सिलेक्ट होता हो जा रहा हो और प्रोजेक्ट तुम समझ पा रहे हो। ओके, ओके दैट्स द मेन थिंग। नहीं मतलब लाइक अप्लाई करने से पहले भी जैसे अमन भाई ने थोड़ा वर्क किया था और फिर स्क्रीनशॉट डाले थे तो उनका भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। या टोटली। रहता है। ओके और लाइक मेरे केस में काफी डिफरेंट था। लाइक ओके जितना भी मैंने बताया कि सब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। ओके, राइट मेरे केस में ऐसा था कि मैं इश्यूज सॉल्व कर रहा था ओके और कंट्रीब्यूट कर रहा था कम्युनिटी में। तो लाइक वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटो कैड वगैरह के बारे में सुना होगा, मैकेनिकल सिविल इन सब में ओके यूज होता है। ठीक, तो जो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे थे तो मैं डिस्कस करता रहता था। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर में एडिशन हो सकते थे, एनहेंसमेंट
जैसे उसमें एक टेक्स्ट एडिटर था, तो मुझे दिख रहा था कि ये फीचर होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर है, मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर लाइक एटम VS कोड में होता है, तो ये यहाँ भी होना चाहिए। ओके, लाइक एरर रिपोर्टिंग, एरर जंपिंग, जैसे फंक्शन डेफिनेशंस वगैरह पे एरर पे क्लिक करते हैं तो उनके लोकेशन पे पहुंच जाता है। तो ये सब मैंने खुद से उन्हें प्रपोज करा था, मतलब पहले उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, मैंने बताया था कि ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग जीसॉक। तो लाइक वो उन्होंने एग्री करा, तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, मैंने ही प्रपोज करे थे जो भी वर्क थे ड्यूरिंग जीसॉक। तो तुम ये भी कर सकते हो। ओके, और वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं क्योंकि तुम उन्हीं से पूछ रहे हो कि ये ठीक रहेगा ना। और उसमें से मतलब जैसे मैंने 3 और 4 टास्क लिए थे जीसॉक के लिए, तो एटलीस्ट 2 तो उन्होंने ही करे थे कि ये काफी अच्छा है, कम्युनिटी मांगती रहती है, इफ यू कैन एड दैट दिस वुड बी गुड। तो लाइक उन्हें वो फीचर चाहिए और तो अच्छा ही रहेगा अगर मैं वो दे दूं तो। ओके, जबकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है। तो लाइक ये भी है एक तरीका। ओके, लाइक डू यू वांट टू शो अस आवर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन वगैरह अपने अपने। ओके, बताओगे रिकॉर्डिंग में या लंबा हो जाएगा? नहीं, कंटिन्यू करते हैं। नहीं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अभी हम अपने फर्स्ट कंट्रीब्यूशन बताते हैं, राइट? मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा GitLab पे था और मेरा ये प्रोफाइल है GitLab का। इसमें मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन से February 18 को है, राइट? तो इनिशियली मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन शुरू किया था, जो कि नॉटिलस नाम का प्रोजेक्ट है, और ये है बेसिकली नोम का फाइल मैनेजर। ब्राउजिंग फाइल सिस्टम को ब्राउज करने के लिए यूज होता है, राइट? ये प्रोजेक्ट का होम पेज है, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन इसमें था वो लास्ट में मर्ज हो गया, बट जो मैं इनिशियली मैं इस पर कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने प्रोजेक्ट स्विच किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले इंक्लूडेड नहीं था जीसॉक के लिए, तो मुझे बाद में प्रोजेक्ट स्विच करना पड़ा। बट गुड थिंग ये है कि मैंने सेम ऑर्गेनाइजेशन में स्विच किया ना, तो मैं अपने कंट्रीब्यूशंस को प्रेजेंट कर सकता था, राइट? तो मैंने ये जो मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड कि आप देख सकते थे कि पहले भी ये बातें चल रही थी, लाइक डिस्कशन ऑलरेडी ऑनगोइंग थे इस पे, बट फिर मैंने इस इशू को स्टडी किया तो मुझे लगा कि आई कैन वर्क थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर देन आई प्रपोज्ड अ सॉल्यूशन, एंड so first I asked कि I am interested and if he can assign, so the maintainer assigned the task to me, and then मैंने अपना एक proposal यहाँ पे send किया कि this is my proposed possible solution, right? And then I could further I could push the changes and then raise a PR so that they could integrate the changes proposed by me. And after some टाइम, लाइक क्योंकि वो रिलीज पीरियड चल रहा था, तो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस आते जाते हैं, राइट? तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मेरा जो ये PR था वो उस वक्त मर्ज नहीं हो पाया, बट लेटर स्टेज में जाके मर्ज हो गया। तो मेरा फर्स्ट टास्क जो था, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन नोम में, वो नॉटिलस प्रोजेक्ट पे था, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट था लिव हैंडी, जिसमें मैंने फाइनली नोम में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मैंने ये टास्क को प्रेजेंट किया था कि अपने प्रपोजल में ऐसे मेंशन किया था कि मैंने ये इस पे कंट्रीब्यूशन किया है। ये मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन रहा। और इसमें एज अ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मेरा चेंज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, बट स्टिल आई जस्ट शो यू द चेंजेस, कितने लाइन्स और क्या कोड चेंजेस किए थे मैंने। और इसमें गेट का जो कमिट मैसेज होता है ना, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, आपने जो वर्क किया है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी एक एस्पेक्ट होता है अपार्ट फ्रॉम द कोड चेंजेस इटसेल्फ। सो ये कोड चेंजेस हैं, डिफरेंट फाइल्स में मेरे ये एडिशंस रहे हैं, राइट? टोटल 5 फाइल्स में मैंने चेंजेस किए और 120 लाइन्स के कोड एडिशन किया। Right. This was the discussion that went through while my code was being merged. Aman, you can, or Rishabh, whoever wants to go next. Okay, I'll share. Okay.
visible? No, right? Yeah. Now it's visible. RA1706. Okay. We can see. So you see, this is a really simple bug. Like what the problem was, like, let me show just a second. You see this menu bar? Yes. It's in the left. I had just had to shift it to the right. So it was like when you change the size of the application, the menu bar was like aligning on the wrong side. Okay. So ये बग पहले से था. Okay. मैंने एक्सेप्ट किया. लो हैंगिंग बग था, मतलब उन्होंने अपडेट नहीं किया. पर ये जीरा का वर्कफ्लो है. जीरा में टिकट्स ऐसे दिखते हैं. Okay. बग मैनेजमेंट जीरा में इस तरह से होता है. Okay. तो एक टिकट क्रिएट करिए RA1706. क्या टाइप है, प्रायोरिटी क्या है इसकी, एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन के लिए है और उसके कौन से वर्जन को इफेक्ट करेगी, Okay. और उसका अभी स्टेटस क्या है, तो वो सारा लिखा. फिर बग क्या है कि 991 पिक्सल से लेस पे जाने पर ये इशू हो रहा है. बग डिस्क्रिप्शन. Okay. जीरा बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है, तो बहुत कुछ ढंग से सब कुछ लिखना पड़ता है, जो भी बग क्रिएट करता है उसको भी. Okay. तो उसके बाद फिर मैंने चेंजेस करे. पहले आपको टिकट एक्सेप्ट करनी पड़ती है. Right. फिर आपको टिकट असाइन होगी. फिर टिकट असाइन होने के बाद ही आप उस पर काम कर सकते हो. Okay. कभी जीरा, अगर जो प्रोजेक्ट जीरा पर मैनेज हो रहे हैं, कभी भी ऐसा मत करना कि तुम टिकट लेके सॉल्व करे जा रहे हो और तुमने टिकट खुद को असाइन भी नहीं किया. अच्छा. ओके. क्योंकि तुम असाइन नहीं करोगे तो हो सकता है पैरेलल में कोई और भी उस पर काम कर रहा हो. उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें. ओके. तो टिकट असाइन करो, फिर सॉल्व करो. फिर ये था मेरा PR. ओके. दिस वाज द PR. उसमें भी PR में भी जो भी PR रेज करते हो तो मेरे ऑर्ग में मतलब पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है कि कौन सी टिकट थी ये और क्या प्रॉब्लम थी और तुमने क्या चेंजेस किए. सो ये मेंटर्स थे इयन एंड मार्क गुडरिच. तो वो लोग जज करते हैं, वो PR अप्रूव करेंगे, उसके बाद फाइनली वही लोग मर्ज करेंगे. चेंजेस बहुत बड़े होना ये ज़रूरी नहीं है. देखो चेंजेस यही थे क्योंकि लोगों को पोजीशनिंग करनी थी. ओके. और वो CSS वगैरह थोड़ा सही करना था, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस थे नहीं. ओके. तो ये था फर्स्ट पर. ओके. Let me stop sharing. Yeah, Rishabh, you can go ahead. Okay. I think it's now visible. Yes. Exactly. Okay, so first issue. I think it must be there. Yeah, this was the first one. Okay. On 4th of Feb. Okay. Okay. Like काफी छोटा सा चेंज था ये मेरा. Okay. Okay. I'm showing you the issue. तो लाइक इस सॉफ्टवेयर में एक टेक्स्ट राइटर है. ओके. लाइक जहाँ पे इनका प्रोग्राम लिखते हैं 3D मॉडल्स क्रिएट करने के लिए. तो उसमें ऑटो कंप्लीट का फीचर था, तो उसमें कुछ बग्स थे. लाइक एक्सीडेंटली पूरा ऑटो कंप्लीट हो जाता था. ओके. अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स. लाइक जैसे तुम कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो MOD और उनके ऑटो कंप्लीट में लिस्ट है मॉड्यूल एक वर्ड है, तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता था. ओके. तो लाइक ये इशू था जो सॉल्व कर रहा था. So like you can see on 1st of Feb I commented the maintainer that I want to work on this issue. Can you guide me? क्योंकि कोड बेस काफी बड़ा है OpenSCAD का, तो मुझे नहीं पता था कि ये बग सॉल्व करने के लिए मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा. ओके. और दूसरा कि ये भी नहीं पता था C++ में एंटायर मतलब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कहाँ क्या फाइल रहती है. ओके. तो लाइक समवन फ्रॉम द कम्युनिटी रिप्लाइड टू मी लाइक ये जो बग आया है इसको सॉल्व करने के लिए तुम इस PR को थोड़ा एनालाइज करो. ठीक है. PR मतलब पहले किसी ने ये इंट्रोड्यूस करा है, तो शायद यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा सर्च डोमेन सॉल्व करने का इस इशू का क्या नाम है छोटा हो जाएगा कि इन सब फाइल्स में किसी में प्रॉब्लम है. ओके. ये जो 38. ओके. तो मैं इसके थ्रू जब मैंने ये रिव्यू करा तो मुझे मिल गया था इशू. छोटा सा था, लाइक इट वाज अ 1 लाइनर चेंज, 2 लाइनर चेंज इन द कम्युनिटी. ओके. So I changed that and it got merged within a week. Okay, so that was the release time.
ओके और ठीक, तो फिर ऐसे छोटे छोटे करते रहते हो इश्यू, तो फिर लाइक काफी कम्युनिटी में तुम्हें लोग जानने लगते हैं लाइक। ओके। ओके तो ये सब जो थे वो आपके जी शॉप के पहले आपने ये सब कंट्रीब्यूट किए थे? या हाँ लाइक ये बिल्कुल फर्स्ट कंट्रीब्यूशन हमने शो करा है। ओके, ओके। यहाँ से हमने इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करा है। ओके ओके राइट। या ओके तो लाइक मेजर की पॉइंट यही है कि मेंटेनर्स वगैरह से बात करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, ओके जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा तुम्हें पता रहेगा कि क्या सॉल्व कर रहे हो। और जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा भी हो जाता है कि मेंटेनर पर टाइम नहीं है, तो ओके वो तुम्हें खुद से पूछ लेते हैं कि तुम्हारे पास टाइम है क्या, तुम ये कर सकते हो क्या सॉल्व। ओके, तो वो डायरेक्टली ये भी करते हैं फिर जब तुम काम कर रहे हो तो। ओके और ओके जब प्रोजेक्ट में आप फर्स्ट कंट्रीब्यूशन के लिए स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है प्रोजेक्ट को समझना। तो ओके जैसे प्रोड्यूसर ने बताया कोड बेस बड़ा है, आपको पता नहीं रहता, राइट? राइट राइट तो उस केस में आप या तो जैसे रजिस्टर ने कांटेक्ट किया तो उस मेंटेनर ने या फिर डेवलपर्स जो वहाँ पे थे उन्होंने उसे गाइड किया और डायरेक्शन दी, राइट? राइट बट फिर आप कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके भी कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने डीबगिंग वगैरह का यूज़ करके अपने फर्स्ट इशू के सॉल्यूशन को फिगर आउट किया था। ओके तो उसमें आप टूल्स का भी हेल्प लेके कर सकते हो। ओके या लाइक बट वो बग पे कोड डिपेंड बेस करेगा। ओके और कोड बेस को पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अ, उस इशू से रिलेटेड जो भी फाइल्स टच हो रहे हैं, कोड जिस फाइल्स में कोड अवेलेबल है उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, बस उन्हें आपको समझने की ज़रूरत होती है, राइट? ओके तो अगर प्रोग्रेस बहुत बड़ा भी है बट एक पर्टिकुलर इशू ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 10 फाइल्स में रैप अप हो जाता है। राइट तो अगर आप उतने पे फोकस करोगे देन यू कैन फिगर आउट कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है पॉसिबली। ओके और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब तुम अपना फर्स्ट इशू सॉल्व कर रहे हो तो इट्स राइट बेटर लाइक यू टेक अ लो हैंगिंग बग। अगर तुम या बहुत हाई डिफिकल्टी का बग ले लेते हो तो और तुम कोड चेंजेस कर भी देते हो और वो फिर राइट जल्दी रिव्यू भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी ऑर्गेनाइजेशन में ओके कि तुम इतने बड़े कोड चेंजेस कर दो। तुम आए, तुमने बस बिना देखे चेंजेस कर दिए, 10 फाइलें चेंज कर दी, राइट 1000 लाइंस का चेंज कर दिया, तो वो मर्ज हो नहीं सकता। ओके या राइट राइट स्टार्ट एग्जैक्टली। ऑलवेज फ्रॉम लो हैंगिंग बग। ओके या तो ओके फिर हमें क्या होता है ना कि हमें कोडिंग स्टाइल भी फॉलो करना होता है। हमें उनके हाँ करेक्ट। डिफरेंट पैटर्न्स और टूल्स को, एनालिसिस टूल्स, टेस्टिंग टूल्स को सबको फॉलो करते हुए हमें अपनी चेंजेस को प्रपोज करना होता है। तो हम अगर छोटे इशू पे फोकस करेंगे तो हमारा जो इनिशियल टास्क होगा वो लाइट रहेगा, राइट डिफिकल्टी लेवल लाइट ओके रहेगा। ओके स्लाइड्स ओपन कर सकते और हो? हाँ, या एक पॉइंट स्लाइड। और इम्पोर्टेंट है। ओके जब तुम प्रपोजल क्रिएट करते हो अपना, ओके जब तुम अपना प्रपोजल क्रिएट करते हो तो प्रपोजल क्रिएट करने के बाद तुम वो कम्युनिटी में शेयर करो और कम्युनिटी से रिव्यू मांगो कि कहीं तुम ओके कुछ या गलत तो नहीं लिख दिया तुमने अपने प्रपोजल में। अच्छा ओके तो उसमें जो मेंटर्स हैं, हो सकता है मेंटर भी जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो एक बार रिव्यू कर ले। वो रिव्यू कर ले ओके तो तुम्हें एडवांटेज मिल सकता है, वो कुछ चेंजेस सजेस्ट कर दे तो राइट वो चेंज करके प्रपोजल करो, तो ये तुम्हारे लिए एडवांटेजेस हो सकता है। ओके प्रपोजल भी कम्युनिटी के साथ शेयर करो क्रिएट करने के बाद। मतलब मैंने और ऋषभ ने बनाया, उज्जवल ने बनाया, सबने शेयर किया, फिर मेंटर्स ने रिव्यू किया, मेरे को चेंजेस सजेस्ट किए, मैंने भी चेंजेस किए, ओके फिर उसके बाद प्रपोजल राइट, फाइनलाइज क्योंकि हुआ। हाँ, या क्योंकि उन्हें भी प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए होते हैं, वो भी ईगर होते हैं कि आप जॉइन हो उनके कम्युनिटी में और कंट्रीब्यूशन करो, तो वो हेल्प करते हैं प्रपोजल्स में। ओके राइट ओके अब well प्रेजेंटेशन okay Rishabh, you should, I think, stop your presentation so that okay mine okay is visible. I will stop So, sharing. ओके yeah. Okay, so Rishabh, this is yeah, this is the stats of 2020. ओके So you can see like only 1198 students were accepted. Okay, and the ओके acceptance rate is only 1/8. तो ओके like competition तो काफी होगा, but like worth enough है क्योंकि हम बता चुके हैं कि राइट perks क्या हैं। राइट और
तो इन फिगर से देख के इतना डरना नहीं चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। ओके और लाइक अभी हम बैचलर्स पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमारे कॉलेज में लाइक फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी अगर ट्राई करना शुरू कर दें तो लाइक इट विल बी रियली गुड। ठीक, होना ना होना अलग बात होगी। या आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि सेकंड ईयर में बिल्कुल ही ट्राई करो, सेकंड ईयर बिल्कुल इज द हाँ, बेस्ट पीरियड, लाइक बिल्कुल। करना ही चाहिए सबको ट्राई। ओके डिच नहीं करना चाहिए। या डिच नहीं करना चाहिए, ओके क्योंकि वो राइट टाइम होता है, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह के लिए भी एंटर करने के लिए रेडी नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, दैट्स वन थिंग। और इसलिए सेकंड ईयर में कर सकते हैं। लोगों का ये ओपिनियन है कि मतलब मोस्टली या तो डरते हैं कि या फिर होगा या नहीं होगा, कैसे शुरू करें, कुछ पता नहीं होता। बट लाइक सेकंड ईयर में और कॉलेजेस वगैरह के जब हम स्टैट्स देखते हैं तो लाइक सब कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक काफी सिलेक्ट होते हैं। ओके लाइक एक स्टैट्स का मैंने पता नहीं, आई थिंक उज्जवल नेक्स्ट में जाना। नेक्स्ट ओके, सो इट्स नॉट देयर। लाइक देयर इज वन पब्लिक स्टैट अवेलेबल, उसमें लिखा हुआ है इंडियन यूनिवर्सिटीज में किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ओके सो पार्ट टू उज्ज्वलेश्वर। ओके सो दीज आर द स्टैट्स। ओके तो देख सकते हो अपने इंडिया से पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा है। ओपन सोर्स में ना एक्चुअली इंडिया से बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया से ओपन सोर्स, बहुत ज्यादा। ओके या तो टोटली लाइक जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ ये लाइक इजीली अभी हम 3 थे, अराउंड 4 सेलेक्ट होते अपने कॉलेज, आई थिंक इट वाज 3। तो लाइक इतना टफ फिगर भी नहीं है कि 10 स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो पाए। ओके तो लाइक अगर सेकंड ईयर से काफी लोग ट्राई करें तो काफी सिलेक्शन हो सकता है, एंड वी कुड बी इन दिस लिस्ट। ओके पार्टिसिपेशन कम है, रीजंस काफी होते हैं क्योंकि ना करने के, बट ट्राई करना चाहिए। लाइक वी रिकमेंड, लाइक कितने बड़े बेस पर डायरेक्ट वर्क करने को मिल रहा है तो फिर कितना अच्छा है। राइट ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपको कि अभी ट्राई ना करने के। ओके Okay, I was unaware. तो Vero, I think you are watching this video, और it's already Feb. तो ये मैंने दिखा दिया, लाइक फर्स्ट फेब को कमेंट है एंड 7 फेब को पहला कंट्रीब्यूशन काउंट हुआ है मेरा, और लाइक इनका भी कुछ ऐसे ही होगा। तो ये रीजन भी क्या है, ये रीजन भी क्या। थर्ड इज अटेंडिंग यूनिवर्सिटी क्लासेस। हाँ, फरवरी में तुम्हारा सेमेस्टर चल रहा होता है, तो लाइक ये तो रीजन बिल्कुल है ही नहीं, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। ओके उल्टा ऐसा लगता था हम तीनों को भी कि हम उस दिन ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं जिस दिन यूनिवर्सिटी है, मतलब अपनी हमारी क्लासेस चल रही है। क्योंकि पता रहता है हमारे पास टाइम लिमिटेशन रहती है, तो फिर जो भी बचा हुआ टाइम था हम बहुत एफिशिएंटली यूज करते थे। लाइक जैसे ही लैब्स हुए तो वहां से सीधा लाइक हम लाइब्रेरी जाते थे मोस्टली, और फिर रात तक लाइब्रेरी ही रुकते थे। ओके तो वो सब टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। ओके या okay, so just it's the end. Okay. This is not the part. एक्टिवा फेस्ट वगैरह के बारे में थोड़ी बताना। ओके ठीक है, तो लाइक आप लोगों ने मतलब प्रॉपरली ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर जीसॉक के लिए अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बिगिनिंग पे, तो कितना टाइम लग सकता है उस लेवल की स्किल डेवलप करने में? ये देखो हमने लेट करा है। तुम्हें अगर पता है कि क्या सीखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो 1 महीना बहुत होता है। ओके 2 हफ्ते में लैंग्वेज सीख जाओगे, फिर ज्यादा से ज्यादा वो लोग एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर टूल यूज कर रहे होते हैं उस लैंग्वेज पे बेस्ड। ओके उसमें मैक्स टू मैक्स 2-3 वीक्स लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 1-1.5 महीने में रेडी हो जाते हो कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या सीखना है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तब अगर कंफ्यूज रहोगे तो फिर टाइम उसमें भी बहुत चला जाता है। राइट और परसिस्टेंस तो चाहिए होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी ना, तो 1 महीना मोर देन एनफ है आई थिंक। ये कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। बीच में जब तुम एप्लीकेशन पीरियड एटलीस्ट जब तक रिजल्ट नहीं आ गया है तब तक तो ऐसा नहीं करना कि बीच में बहुत लंबा गैप दे दिया, एटलीस्ट वीक 10 डेज का, कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो कम्युनिटी। ओके तो लाइक वी वर कंट्रीब्यूटिंग रेगुलरली, काफी ज्यादा एक्टिव थे आरसी चैनल में, डेली किसी ना किसी इशू पर बात होती रहती थी। ओके ठीक तो ये जो ये सब भी वो देख हाँ
कितने आप एक्टिव उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम वहाँ जा रहे हो सिर्फ GSOC के लिए, तुम एक कंट्रीब्यूटर Yeah. बन के जा रहे हो। ओके राइट हाँ तुम क्या करोगे, सिलेक्शन से पहले कंट्रीब्यूशन करोगे, फिर 1 महीने का टाइम होता है सिलेक्शन के लिए, जब ब्रेक मिलता है उधर कुछ करोगे ही नहीं, तो उनको Okay. लगेगा कि ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए आया है। राइट उनको लॉन्ग टर्म Yeah. पार्टिसिपेंट चाहिए। ओके वैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज करती है इस बात को कि मोस्टली स्टूडेंट्स हाँ। GSOC पीरियड में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स, पर Okay. फिर भी एक वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना होता है। ओके राइट राइट, ठीक है। उनके पास भी टाइम नहीं होता है कई बार, तो वो भी समझते हैं कि लाइक वी आर स्टडिंग, तो राइट बिल्कुल क्लियर होता है उनके दिमाग में भी, ठीक है कभी हम बिजी भी हैं तो इसलिए। राइट हाँ व्हाट आई डिड कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन करने का मन नहीं है ना, इश्यूज पे वर्क करने का मन नहीं है, तो मैं इश्यूज पे कमेंट करता था कि ये इशू में लाइक कुछ ऐसे टेस्टिंग टाइप का वर्क कि ये इशू है, तो मैं उसको ऐसे कंफर्म करता था कि हाँ आई कुड टेस्ट दिस ऑन माय सिस्टम एंड दिस इज दिस, तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके या so I think we will finish here. ओके Okay. और ये रोड मैप भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दें। ओके ओके ठीक है, इसका लिंक मैं बाद में दे दूंगा, थोड़ा एक अलग रिपोजिटरी क्रिएट करके दे दूंगा, क्योंकि Okay. ये मैं चेंज करता रहता हूँ। ओके, ओके तो सेपरेट करके दे दूंगा। ओके नो ओके 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 ऋषभ भाई, अमन भाई, उज्जवल भाई, थैंक यू। या Thank you, Kiran. Thanks for having थैंक यू, us. Like, थैंक यू very थैंक nice. यू। थैंक यू थैंक्स करुण।